السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، سال 2025 کی بات کی جائے تو پاکستان ایک بار پھر عالمی سفارتی اور سیاسی بساط کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکی اخبار دی ڈپلومیٹ ہو یا واشنگٹن ٹائمز، برطانوی جریدہ فائنینشل ٹائم ہو یا امریکی جریدہ فارن پالیسی، دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان ایک فعال، متوازن اور کامیاب ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ خطے میں بعض دیگر ممالک سفارتی تنہائی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت متحرک سفارتکاری کے ذریعے نئے عالمی توازن میں اپنا مؤثر کردار منوا رہی ہے، لیکن اس دوران ایک تشویشناک اور سنگین پہلو بھی سامنے آ رہا ہے۔ برطانیہ کی سرزمین پر پاکستان مخالف ایجنڈا، ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور دہشت گردی پر اکسانے کے بیانات، جنہوں نے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور برطانوی انسداد دہشت گردی قوانین کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ برطانوی شہر بیڈفورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر ہونے والا احتجاج ایک سیاسی جماعت کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے منظم کیا گیا، جہاں مظاہرین نے پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف کھلی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، حتیٰ کہ کار بم دھماکے کی بات کی گئی۔ یہ آزادی اظہار نہیں، یہ سیاسی اختلاف نہیں، یہ براہ راست دہشت گردی پر اکسانے کا معاملہ ہے۔ پاکستان نے اس واقعے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے برطانوی قائم مقام ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے۔ باقاعدہ ڈیمارش جاری کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ملوث عناصر کے خلاف فوری، شفاف اور قانونی کارروائی کی جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، کیا برطانیہ اپنی سرزمین کو انتہا پسند بیانیے کے لیے استعمال ہونے سے روک پائے گا؟ کیا بین الاقوامی قوانین سب کے لیے برابر ہیں؟ اور کیا ایک طرف مذاکرات کے دعوے اور دوسری طرف ریاست دشمنی، کیا یہ سیاسی منافقت کی واضح مثال نہیں ہے؟ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ رانا محمد اعظم صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور فہد شفیق صاحب مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، آپ دونوں میرے مہمان ہیں۔ پہلے تو رانا محمد اعظم صاحب آپ سے ابتدا کرتے ہیں، پارٹی سے اون کرتی ہے جس قسم کے گفتگو بیڈ فورڈ میں کی گئی، ساری دنیا نے دیکھی، وائرل ہے اس وقت ویڈیو، باقاعدہ ملک کے فوجی سربراہ کے خلاف باقاعدہ دھمکی آمیز گفتگو، اور پھر یہاں تک بات نہیں ہے وہ کسی کا انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے، اسے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کیا جانا، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اس کے بعد جو ہے سب سیاسی جماعتیں ہیں، اور پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پاکستانی قوم کو کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی باہر ممالک میں اگر کسی نے احتجاج کی ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ میں بینگ کے پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس میں رائے کیا ہے؟ کیا یہ سوشل میڈیا جو چلا رہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یا خاموشی سے ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے؟ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے پوری ملک کے اندر، وہ آپ سب کے سامنے میں ہے۔ غیر یقینی کیفیت والی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، اور کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، نہ پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں قانون ہے، نہ ہی پاکستان میں کوئی محفوظ ہے۔ اور یہاں تک تو پاکستان سے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے جو کاروبار ہے، وہ وینڈ ہو کے باہر ممالک میں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ باہر ممالک میں بیٹھے کوئی بندے کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور میں اس کی بالکل اس کی جو ہے نا نفی کروں گا کہ تو پی ٹی میں آئی نے اسے کہا اپنے مطلب جو پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت موجود ہے بری الذمہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں جمع ہو، احتجاج کیا جاتا ہے، پھر اس میں جو کچھ گفتگو، جو کچھ سامنے آیا ہے اسے دوبارہ شیئر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اون کر رہی ہے نا تحریک انصاف کے، یہ ہم نے کیا ہے اور بالکل درست کیا۔ دیکھیں جی، یہاں وہاں پہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کافی جگہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں کوئی سیاسی پروگرام ہو رہا ہے، سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، وہاں پہ
दूसरी मुखालफिन जो है वो लोग आपके प्रोग्राम में अंदर घुस के और आपके प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की जाती है, आपके बयानिया को गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। बाकी ये बात तो सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियों तो बहुत होगी ना, कि ना तो हमारी ये माएँ बहनें महफूज है, ना हमारी कोई नौजवान महफूज है, बेगुनाह केसेस बनाए जा रहे हैं, बेगुनाह सजाएं दी जा रही हैं। अगर अगर इसके ऊपर अगर कोई अपना दिल जला कोई अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, तो मैं समझिए उसकी अपनी जाती राय है। जाती राय अगर मैं होती, मैं आजम साहब, जाती राय होती तो उसके हाथ में माइक नहीं पकड़ाया जाता ना, उसे बाकायदा मुंतजमीन ने माइक दिया कि आप ये गुफ्तगू करें। खैर, मैं फाद शफीक साहब हैं, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, मैं उनसे हुकूमती मौक़िफ़ जानता हूं। सर, ये डिमाश किया गया है, जो कायम मकाम इस वक्त कमिश्नर है बरतानवी, उन्हें बात यहां तक रहेगी, बाकायदा कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है, बरतानिया में माजी में भी किया गया, होता कुछ नहीं है। इस दफा हुकूमत ऐसा क्या करने जा रही है इसके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूंगा, मैं भाई की पूरी बात सुन रहा था और भाई ने कोई क्लियरली जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल, जाहिर है। एंड इस पे आ गए कि ज्यादती हो रही है। ये जो हरकतें कर रही है पीटीआई या ये अलीमा, इनकी जो बहन है इमरान खान साहब की, जो इंडियन चैनल्स को इंटरव्यूज देते हैं, उसके बाद जेलों के बाहर फौज मुखालिफ नारे लगाते हैं, उसके बाद हरकतें करते हैं, फिर अब बरतानिया में आपको देखिए, दुनिया को पता है कि इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ओवरसीज से चल रहे हैं, और इनके जितने भी लोग थे सारे वहां भाग के बैठे हुए, चाहे वो गलीज टाइप के लोग, शहबाज गिल, शहजाद अकबर और मुख्तलिफ जो जितने भी गलीज किस्म की जबानें इस्तेमाल करते हैं, ये इंडिया से फंडिंग लेते हैं, इसराइल से फंडिंग लेते हैं, उसको यूज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, मैं तो कैटेगोरिकली ये बात बोलूंगा कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आपने खुद देखा किस तरीके से आप क्या इमेज देना चाह रहे हैं। आप सियासत में इस एक्सट्रीम पे चले गए कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। आप पाकिस्तान की शाखें काटने लग गए। मतलब आप सियासी तनकीद करें, आपके पास असेंबली का फोरम मौजूद है, आप वहां पे हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उन्होंने 10 मई को पाकिस्तान का नाम कितने ममालिक में रिकग्नाइज किया। अब लोग हमें बड़ी फख्र की निगाह से देखते हैं। कई दफा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का नाम लिया। कई ममालिक आपके वहां विजिट कर रहे हैं। आज भी यूएई के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान विजिट किया है। कई दुनिया से लोग हमें डिफरेंट निगाह से देख रहे हैं। हमारा एक किरदार बहुत बेहतर होता जा रहा है, और ये पीटीआई पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रही है, किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान रियासत के खिलाफ या किसी फोर्सेस के खिलाफ बात करेंगे, इनकी जबान काट दी जाएगी। कैटेगोरिकली इनको बताया आपको मुज़ाकरात करने, आप असेंबली में आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो ज़बान कानूनी तरीके से कैसे काटेंगे, आप बरतानिया के अंदर करेंगे क्या? मैं वो लाहे अमल जानना चाहता हूं। बरतानी अभी आपने देखा पिछले दिनों जो एक इनके साहब ने गलाजत जो बिल्कुल बोली थी, और उन्होंने फिर माफी मांगी है, जो बरतानवी कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, कितना पाउंड हर्जाना लगाया है। जी जी, आदिल राजा ट्विटर अकाउंट से शफीक साहब मेरी बात सुनिए, शफीक साहब मेरी बात सुनिएगा। शफीक साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि हलीमा आपा ने कोई इंडिया चैनल के इंटरव्यू देते हुए खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। आपके कायल ने तो हमला पाक फौज को करवाया था, हमारी पाक फौज ने करवाया है। एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। को क्या कहेंगे? अच्छा, बारी बारी अगर बात कर ले आजम साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आजम साहब, हम शफीक साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। उसने पाक फौज के ऊपर कहा था कि पाक फौज ने बम्बई हमले करवाए हैं। जब कोई मुल्क का वजीर आजम या प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा होता है, ये धरने इनको याद आ जाते हैं। और भाई, कारकर्दगी क्या है? आप अपने लीडर के बारे में तो बताएं ना, आपके पाकिस्तान की शाखें काटते रहे। आजम साहब, एक मिनट, आजम साहब आपको पूरा टाइम दूंगा। आजम साहब, शफीक साहब को सुन लें, हम शफीक साहब को हम सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। इस तरह समझ नहीं आएगी ना बात, किसी की बात समझ में नहीं आएगी ना। तनकीद बर्दाश्त करनी है भाई। हमारे ऊपर आपकी हुकूमत में हमारे सारे लीडरान जेल में थे, कोई भागा, कोई भगोड़ा नहीं था आपकी तरह। आप सारे भगोड़े हो और इंडियन एजेंट हो, आप काम कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ। साफ वाज़ेह होता जा रहा है। गवर्नमेंट का बंदा बैठा हुआ है वो, और उसके बाद अगर आप पीटीआई के किसी रहनुमा से पूछे तो वो आपको चौरंगिया घुमाता रहेगा।
और पीटीआई का तो तुम ये लोगों ने नहीं हुआ, वो नहीं चोरी हुआ, किया, ज्यादती हो रही है। चोरी किया आप हुआ। उठ के जो बकवास पीटीआई का करते रहो, मैंने चोरी करके पाकिस्तानी आप चैनल पे जाली आके, पीटीआई का मतलब चैनल उन्होंने पे गवर्नमेंट आके बनाई है, आप व्लॉगिंग करते गवर्नमेंट रहो जाली है आके आपकी, यूट्यूब आपने के ऊपर, हमारा आपको कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट जाली चोर है, नहीं वो हुई। लगे हुए हैं। हर पीटीआई को मैंडेट दहशतगर्द, मिला था, हर आप पाकिस्तान चोर के हैं, खिलाफ बात करने वाले के खिलाफ आपके लीडर भी सख्त चोर से है। सख्त एक्शन होगा इंशाल्लाह। सर एक मिनट ना, एक मिनट सुन लेना आजम साहब। आजम साहब जज्बाती ना हो, नहीं सुन सुन ले। सकते, झूठे हैं, झूठे हैं, नहीं सुन सकते। पाकिस्तान मुखालिफ है, नहीं सुन सकते। को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सर सुन लेना, सुन ले। पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, नहीं सुन सकते। स्टेमिना ही नहीं है सुनने अल्हम्दुलिल्लाह, का। ये पाक फौज भी हमारी है। चले, चले, चले। असेंबली में आए, कोई एक फ्लोर पे आके बात पूरी करें। पाक फौज हयात नहीं सादिक होती साहब है। बोलते हैं मेरे समझे? पास 24/7 आप लोग इनके लिए हमेशा दरवाजे पाक खुले। फौज के कंधों पे बात चढ़ के आते होगी हैं, जो पाकिस्तान की आपके मईशत काले कैसे बेहतर हो सकती है। अवाम में ठीक है, ठीक है, आप एक मिनट आजम साहब, एक मिनट मुझे दीजिएगा। इंडिया के खिलाफ चैनलों सर में आजम जाके साहब, बात करते हो, आजम और साहब आप इंडिया सुन के लेना। वज़ीर आज़म को आप बगैर वीज़े के ये तो अपनी आप- शादियों ये में तो आप बुलाते हो। शुक्र सर करें। सर वो ये तो शादी आप में शुक्र बुलाना एक करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी वो। खैर आप सुन ये आप लेना शुक्र आजम करें। साहब, आप हमारी भी सुन लें। हम अगर प्रोग्राम नहीं, करने नहीं, बैठते वो हैं तो कम से सुनेंगे कम नहीं। सवाल सुन लिया करें, आप ये बहुत आप- जज्बाती ये हो आप- जाए। ये आप शुक्र मैं ये करें कह रहा कि हूँ ये फाज लाइव साहब, एक बैठे मिनट, नहीं फाज है, साहब face ये to face मुझे वरना आपको तबीयत आईना कर देता। दिखाया तो बुरा लग गया भाई, साड़ियों को तो मैंने पाकिस्तानी नहीं मुखालिफ बजाए, लोग हैं। इमरान खान ने नहीं भाई बजाए, तनकीद आपके की- आपके आप वज़ीर हम पे आज़म सर तनकीद करो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। सर एक मिनट आजम साहब सुन लीजिए। सर नवाज शरीफ ने बुलाया, सर, सुन लीजिए आजम साहब। वो उसका कसूर सारा पाक ये फौज पे चेक करें, आपके आजम लीडर साहब ने ने कहीं डाला। रेडियो तो ऑन नहीं कर दिया, आजम अपनी आवाज साहब रिकॉर्ड लड़ लीजिएगा, जो कहना है कह लीजिएगा, लेकिन अपनी बारी पे कहें। फाद शफीक साहब आपसे भी मैं चाहूंगा थोड़ी देर रुकिएगा। मैं शामिल करूंगा कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं और सारी सूरत हाल को समझते हैं। ये प्री प्लान ऐसे लगता है जैसे पाक फौज का मोराल डाउन करने की कोशिश है। दूसरी जानिब हम देखते हैं अमेरिकी अखबार डिप्लोमेट हो, वॉशिंगटन टाइम्स हो, बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम हो या अमेरिकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी, ये सब कह रहे हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल की जो पॉलिसी है उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बरतानिया के अंदर एक सियासी जमात एहतजाज करती है, उसके अंदर इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है जो सिर्फ इल्जाम नहीं है या सियासी तनकीद नहीं है बल्कि जान से मारने की धमकी है। भट्ट साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए बात यह है कि हमारी जो भी पॉलिसीज हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। और जब आप देखें लोकली स्पेस नहीं देते लोगों को तो फिर बाहर से आवाजें उठती हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर भी थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। और फिर बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी जो है थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है और दुनिया की नजरों में उसका ग्राफ जो है वो ऊंचा हुआ है और ये सारी दुनिया को नजर आता है, हमें भी नजर आता है, जो अपोजिशन है उसको भी नजर आता है, गवर्नमेंट के लोगों को भी नजर आता है। तो इसमें ये फख्र की बात है, ये पूरी कौम का सर ऊंचा हो जाता है इस तरह की बातों से। आपको याद होगा कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो है अमेरिका में थी, तो अमेरिका के जो सपोर्टर थे ट्रंप के, उन्होंने हमला कर दिया था उधर, शीशे तोड़ दिए, बिल्डिंग का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को मारा। तो ये जो चीजें हैं ये इनको कंट्रोल करने के लिए ये होता है कि आप उनको बोलने दें जो बोलना चाहते हैं। वो आपके कंट्रीज में लॉज हैं, वहां पर भी लॉज हैं। जो गलत काम करेगा, जो गलत बात करेगा, उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली एक्शन लिया जाएगा। तो भट्ट साहब ये लेकिन जो इस वक्त कायम मकाम कमिश्नर है बरतानवी, उन्हें डिमाश किया गया है, तो पाकिस्तान इस पे कानूनी तौर पे बरतानिया में कोई इस पे केस कर सकता है? इसकी कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप सियासी इख्तलाफ करें, आप कहें कि हमारा वोट चोरी हुआ है, उसकी तहकीकात नहीं हो रही, लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी नहीं। देखिए बात यह है कि ये आपको इसका इतना ज्यादा नोटिस लेने की कतई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, हाँ, कोई जरूरत नहीं है। आप जितना इसको आप नोटिस लेंगे उतना ही आप इसको उछालेंगे और ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ जाएगा। तो ये हुकूमत ने जो डिमाश किया है, भट्ट साहब आप समझते हैं हुकूमत ने कर्नल साहब जो डिमाश किया है ये नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो ठीक है, उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के जो
दिया है वो सही दिया है। हाँ। कि भाई आप इनको अपने जो पाकिस्तान के लोग वहां रह रहे हैं वो अब ब्रिटिश सिटीजन है। देखें बात ये है, उस सालों साल जो ब्रेडफोर्ड शहर है हाँ। वो तो है ही पाकिस्तानी, मिनी पाकिस्तान है। तो वो अब उसको समझाने की बात है कि भाई आप इनको जरा थोड़ा कंट्रोल करें और विद इन लिमिट्स जो है ये क्रिटिसिज्म जरूर करें। अगर करते हैं वहां तो आजादी है ना। देखिए हाइड पार्क में आप एक वहां कॉर्नर बनाया हुआ है उन्होंने, वहां जाके कोई भी आदमी जो है ना गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी कर सकता है, जो चाहे वो तकरीर कर सकता है, उसको कोई पुलिस ना गिरफ्तार करेगी ना कुछ करेगी। उन्होंने स्पेस दी हुई है, ठीक है कि नहीं है। तो हमें इतना मतलब घबराने की जरूरत नहीं है किसी के कहने से कि जी वो ये एक्शन लेंगे और ये होना चाहिए। तो लेट देम शाउट। वो अपना गुस्सा जाहिर निकालना चाहते हैं तो निकालने दें उनको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उससे पाकिस्तान की रेटिंग में कमी आ जाएगी? कोई ऐसी बात नहीं होगी। और जहां तक हमारा अपना इंटरनल मामला है उसको भी जरा देखने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने लोगों को यहाँ स्पेस दें। स्पेस देने का ये मतलब है कि उनको बोलने दें, क्या बोलना चाहते हैं भाई वो। और कानून के अंदर रहते हुए अगर वो बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बोल रहा तो उसके लिए कानून मौजूद है। ये आपस में ये जो दोनों साहब लड़ रहे थे वो अपने उसके में प्लीड कर रहे हैं, वो उसको प्लीड कर रहे हैं। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। यू मस्ट बी न्यूट्रल। आप देखें कि जो सही चीज है वो सही है, वो सारी दुनिया को भी नजर आती है। जो गलत है वो सबको गलत नजर आती है। उसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते। बात बड़ी सीधी है। ठीक तो है। जब तक आप लोकली आप इनको लोगों को स्पेस नहीं देंगे, जब लोकली स्पेस बंद कर देंगे, जो भी हरबे इस्तेमाल करें, जो भी कवानीन का इस्तेमाल करें, तो ये आवाजें फिर बाहर से उठेंगी और उठती रहेंगी। इनको कोई नहीं रोक सकता। चले ठीक है। ये मैं राना आजम साहब हमारे साथ है ना, उनसे जान लेता हूँ। आजम साहब, आपने क्लियर नहीं किया। एक तरफ पीटीआई उसे शेयर करती है, मतलब दबे लफ्जों में ऑन भी कर रहे हैं। जब कोई पीटीआई का रहनुमा आता है टेलीविजन के ऊपर तो वो इसे ऑन नहीं करता, वो कहता है कि ये तो बाहर एक शख्स का इंडिविजुअल एक्ट है, खातून है, वो ये कह रही है। लेकिन जाहिर है मुंतजमीन ने उस खातून को माइक दिया है, उसे बोलने का मौका दिया है, और ये भी मुमकिन है कि पहले उसे कहा गया होगा कि ये सब कुछ कहना है आपने। आजम साहब। अच्छा जी, ब्रदर, सबसे पहले तो मैं हमारे जो शफीक साहब आए थे नून लीग के हमारे दोस्त, उनके लिए जो, क्योंकि उन्होंने हमारे पीटीआई के बारे में, हमारे कायदीन के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल की है कि जुबान काट देनी चाहिए, फलाना काट देना चाहिए, तो पहले मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ। और इनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आई होप कि वो जबान काटना इस्तिलाह है, जाहिर है उन्होंने कहा होगा कानूनी चारा जो ही ना। तो मैं ये समझ, देखे जी बात यह है, देखो पीटीआई के साथ तो जुल्म हुआ है ना। 17 सीटों वाला वजीर आजम बना दिया, और वजीर आजम बनाकर गैर आईनी और गैर कानूनी बिल पेशी किए, जिसके आजम साहब यहाँ पे थोड़ा सा रोकूं आपको मैं, थोड़ा सा रोकूं मैं आपको। ये 17 सीटें आपको बताया किसने? किसी अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ने, किसने बताया था? 17 ही था नंबर इनका मुस्लिम लीग नून। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है कहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है। किसी इदारे की रिपोर्ट तो हो गई ना। 17, ये 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन फेयर हुआ, लेकिन 17 का फार्मूला कहाँ से आया आपके पास? नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार गए थे, शहबाज शरीफ अपनी सीट हार गए थे, इनको जितवाया गया। 547 की पैदावार है ये। और मियां नवाज शरीफ साहब ने बम्बई हमले हमारी पाक फौज के ऊपर डायरेक्टली टीवी में बैठ के इन्होंने कहा कि ये पाक फौज ने करवाए हैं। ठीक है ना। आप फिर ये देखें, फिर आप मोदी साहब को जो है इन्होंने वजीर आजम, इंडिया के वजीर आजम, डायरेक्टली बगैर वीजे के इन्होंने अपनी बच्ची की शादी में बुला लिया। मैं बताऊं, पाकिस्तान के साथ उनकी फैक्ट्रियों से राह के जेंट बराबर हुए हैं। और ये साड़ियों के तोहफे जब मैंने नहीं भेजे, ना खान साहब ने भेजे, ना खान साहब की बहनों ने भेजे हैं, ये मियां नवाज शरीफ भेजते रहे इनको इंडिया को। तो भाईजान ये तो इंडिया के साथ इनकी पार्टनरशिप है, इसराइल के साथ इनकी पार्टनरशिप है, इनके बिजनेस है, इनके इजराइल के साथ आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के पार्टनरशिप है, लेकिन खान साहब के ट्विटर अकाउंट से सब कुछ होता है, इजराइल की मजम्मत नहीं होती। देखिए, पूरी दुनिया से इमरान खान ने पैसा इकट्ठा किया, पाकिस्तान में लगाया,
3 कैंसर हॉस्पिटल बनाया। पाकिस्तान, वो कहता है पाकिस्तान भी मेरा है, फौज भी मेरी है। मगर जो बयान आप कह रहे हैं, देखिए मैं आप अबिन के पाकिस्तानी, कोई भी हमारी पाक फौज के बारे में बुरा कहेगा, मैं उसकी मजम्मत करूंगा। पाकिस्तान के लिए बुरा कहेगा, मैं उसकी अच्छा, मजम्मत पीटीआई करूंगा। पीटीआई क्योंकि खान सबसे साहब पहले सुन लें सबसे आप पहले आप खुल के पाकिस्तान है, मजम्मत कर रहे सबसे हैं, बहुत पहले अच्छी बात पाकिस्तान है। है, उसके बाद आजम साहब बहुत अच्छी बात सबसे है, पहले आप मजम्मत कर पाकिस्तान रहे है, हैं, आप खुले दिल उसके का बाद मुजाहरा जो कर है रहे हैं, सुन लीजिए ना वियतनाम, कर्नाटक सर। और अर्ज सुन लीजिए, कैसर। सवाल सुन लीजिए। अगर आप मजम्मत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जाहिर है आप अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, पाक फौज के आप कह रहे हैं साथ खड़े हैं। जो खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो फौज और फौज के सरबराह के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल होती है, उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं बताता हूँ, जैसे कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा बात की है कि जब आप किसी को स्पेस नहीं देंगे, हाँ आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे। हाँ। आज तक किसी की, जितने भी मीडिया हाउसेस बड़े बड़े, हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती, ठीक कोई है। हमारा प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता है। ये पूरा प्री प्लानिंग काम होता है। और जाहिर सी बात, जब आप पाकिस्तान में किसी को दबाएंगे, मारेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, निजायज केसेस बनाएंगे, निजायज सजाएं देंगे, तो बाहर ममालिक में तो आजादी राय का हक है ना, वहां तो कानून है। कानून कानून पे आमद दरामद होता है। पाकिस्तान में तो कुछ नाम की चीज और नहीं है। अगर वहां पाकिस्तान आपने कानूनी कार्रवाई करता है तो कोई एतराज नहीं है बरतानिया हमें में? कोई इतराज, कोई इतराज नहीं है। हमें कोई तरह, देखे जी, अगर किसी ने गलत किया है वो भुगतेगा, कोई भी हो इसमें, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि मैं यहाँ कहूंगा अल्लाह ताला उसकी नस्ल को, उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दे और ये और इबरत का निशान बना दे, पीटीआई को अपने जिसने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम को इस नुकसान पहुंचाया। किस्म के गुफ्तगू आजम साहब पीटीआई को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी शेयर नहीं करनी चाहिए थी? मेरा ख्याल से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत क्लियर कर दिया आपने। फाज शफीक साहब, सारी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? बरतानिया के हवालगी के हवाले से हमारे पास कोई ऐसा मुआहदा नहीं है। माजी में हम कोशिशें कर चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से आप देख लें, फिर उसके बाद बानी जो MQM थे उनको वापस लाने की बातें की गई थी, तहरीक इंसाफ खुद नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें करती थी, लेकिन ये लोग उस वक्त आए जब इन्होंने खुद आना चाहा। रियासत ये काम नहीं कर पाई माजी में। क्या अब ऐसा कर लेंगे आप कि इस किस्म के लोग जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ वहां गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें या तो चुप कराया जाए, उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, या उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट करवाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो आपको पहले वाली बात बोली ना कि भाई मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये है कि मेरे मुल्क की शान को कम ना किया जाए। नंबर 1, मेरा मुल्क है तो मैं हूं और ये भी हैं और आप भी हैं, सही है, और हम ये बैठ के बात भी कर सकते हैं जी। अभी भाई ने मेरी बात करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट है तो इनको इमरान खान को भी डिसोन करना चाहिए कि अगर इमरान खान भी मुल्क के खिलाफ या मुल्क के किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ कोई बात करते तो वो बिल्कुल गलत है और जबान काट दी जाएगी, चाहे इमरान खान हो या कोई भी पीटीआई का रहनुमा हो जो खिलाफ बात करेगा पाकिस्तान के, उसकी जबान काटी जाएगी। नंबर 2 कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास असेंबली का फ्लोर मौजूद है। अयाज सादिक साहब कैटेगोरिकली ये बात कई दफा बोल चुके हैं कि 24/7 मेरे पास दरवाजे खुले हुए हैं, आप आए, बैठे, असेंबली में तनकीद करें, हुकूमत की कारकर्दगी पे तनकीद करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। देखिए ये मैं तो नहीं कह रहा, ये आपने भी देखा, इन्होंने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि जब इमरान खान की बहन को उनसे मुलाकात के लिए भेजा गया तो उसके बाद आके अगले दिन उन्होंने इंडियन चैनल को इंटरव्यू क्या दिया, इंटरव्यू वो सुने जरा। उसके बाद आपने 9 मई को क्या किया पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद आपने, और देखिए अल्लाह का निजाम है, 9 मई को इन्होंने इंतशार फैलाया पाकिस्तान के अंदर, उसके अगले साल ही 10 मई को पाकिस्तान का नाम अल्लाह ताला ने कितना सुरखरू किया और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के उसमें और शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, मतलब मिल के जब टीम वर्क हुआ ना, तो इसी तरीके से इनको भी चाहिए कि पीटीआई के काफी सारे लोगों ने पीटीआई से खैर बात इसी वजह से किया है कि वो बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में। जहां तक बात रही कि बरतानिया में ऐसा कोई, मैं बरतानिया में रह के आ चुका हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाई की है, बरतानिया में ऐसा कोई बंदरबाट कानून नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कहते रहे और आपको कोई कुछ ना कहे। डेफिनेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अलायंस है और इंशाल्लाह ताला
جیسے ابھی ان کے ایک اور رہنما کو جو غلیظ لوگ وہاں بٹھائے ہوئے نا، جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، بیٹھ کے ویلاگس کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے نا، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ڈپورٹ کر کے پاکستان کو بھی دیا جائے گا. یہ قانون موجود ہے. کوئی ایسے کھلے عام کسی کے ملک کی سالمیت کو نقصان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، میں کرنل صاحب آپ سے جان لیتا ہوں، یہ بار بار ذکر بیچ میں 9 مئی کا بھی آ جاتا ہے. اب گو کہ معاملہ پرانا ہو گیا، سزائیں ہو گئیں، تقریباً 90% آپ کہیں کہ سزائیں ہو چکی ہیں. اس کے لے کر جو بانی پی ٹی آئی ہے یا تحریک انصاف ہے، اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، یا جو سزائیں ہو چکی ہیں اس کو آگے چل کے اب دیکھنا چاہیے کہ آگے وہ اگر ایک سیاسی جماعت والا رویہ اپناتے ہیں تو ان کو سیاسی جماعت ہی لے کر چلنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بھیانک پاپ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اس میں لوگوں کو جو انوالو ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اور کچھ کیسز جو ہیں پینڈنگ ہے. کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت کا آدمی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کا، اس کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرے، آرم فورس کے خلاف بات کرے. میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے پاس دوسرا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے سوائے ہم فوج کو بیٹھ کے سارا دن ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کیا پرابلم ہے؟ ابھی آپ کو پتا ہے اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے پاکستان کا، وہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. ہائیبرڈ سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ فلی انوالوڈ ہیں گورننس کے اندر. تو ایس آئی ایف سی بنا تھا کس لیے بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا کہ پاکستان ایٹ دی ورج آف کولیپس تھا، ڈیفالٹ ہونے والا تھا. تو فیلڈ مارشل عاصم منیف صاحب ملکوں میں گئے، انہوں نے رکھا، سارا کچھ کیا، ڈسکشن کیا، اور وہاں سے آپ کو پتا ہے فنڈنگ آئی. اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ گیا. اب اگر کوئی کام پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں نا، ابھی دیکھیں لیبیا کا ٹور کیا انہوں نے، $4 بلین کی وہ آرمامنٹ جو ہے وہ، تو اس کے بارے میں بھی تو ٹویٹ کریں نا، سب کریں، سب پارٹیوں کو کرنا چاہیے کہ یہ کام اچھا ہوا ہے. سر بدقسمتی سے کرنل صاحب صورتحال یہ ہے نا، یہ پی ٹی آئی تو یہ ٹویٹ نہیں کرے گی. نیگیٹیوٹی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جو اس وقت ملک یا ریاست کے خلاف بات ہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہے. بدقسمتی سے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں. نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی بھی جماعت ہو، ان کو اب دیکھیں گا گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی چاہیے کہ زمینی حقائق کیا ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ پاکستان اب ترقی کی راہ پر چل رہا ہے، اور دوسرا زمینی حقائق یہ بھی ہے کہ تھوڑا سختی ہے یہاں پر. آپ نے دیکھا ہوگا ٹینشن ہے، ٹینس ہے ایٹماسفیئر، اس کو بھی ایز ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے. تو میرے خیال میں جو ٹھیک ہے، میں اعظم صاحب سے آخری کمنٹ لے لوں گا. اعظم صاحب آپ موجود ہیں، مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے اعظم صاحب، میں آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گا، یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے تو ایک دفعہ پھر کلیئر کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور یہ میری معلومات کے مطابق یہ 11th ٹائم ہے، 11 دفعہ ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پہلے منع کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، کہا کہ جواب ہے ہم نہیں کرنا چاہتے بات. پھر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان یا اپوزیشن الائنس ہے اس کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا ہے. کن شرائط پہ مذاکرات ممکن ہے؟ جی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی بھی معاملات ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنے سے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں ہماری لیڈیز کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ. آخر حل یہی ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے. جہاں اگر ہم غلط ہیں ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی غلط ہے. جہاں پہ حکومت غلط ہے، جہاں پہ حکومت نے غلط کیسز بنایا، غلط چیزیں کی ہیں، ان کو اپنے پیچھے ہٹنا چاہیے. دیکھو یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، پارٹیاں، یہ سیاسی معاملہ جتنے بھی ہیں، اگر ملک ہمارا سلامت ہے تو ہم
किसी भी सियासी पार्टी के रुकन भी है, अगर मुल्क नहीं है उनसे पूछे जाके, जिनके आजाद मुल्क नहीं है, अफगानिस्तानी जो यहाँ से गए ना तो बेचारे, इसका आसान तरीका है ना आजम साहब, इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप ये जो जिस किस्म का फितना सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है पीटीआई के नाम से, बाज यूट्यूबर्स अपने आप को ओन करते हैं हम पीटीआई के हैं, तो उनसे बरीउ जिम्मा करार दे दें, अपने आप को कह दें हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। देखें इसमें एक और भी चीज है, देखो ये बात जो आप कर रहे हैं, मैं ये भी कह रही, ये जो जितनी जातियां जो कि ये, मैं ये कहता हूँ आप कुछ नहीं कर रहे। 9 मई का भाई शफीक साहब ने हमारे जिक्र किया है, 9 मई का हम तो मुतालबा कर रहे हैं जुडिशरी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, क्यों नहीं बना रहे हैं? वो सीटीसी सर फोटोज, कमीशन उस पे बनता है जो चीज कंफर्म ना हो कि ये हुई है या नहीं है। 9 मई हुआ है, उसमें वीडियोस मौजूद है। हमारा वक्त खत्म हो गया, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप से इस हवाले से तफसील से बात हो सके। फात शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे, राना मोहम्मद आजम साहब तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और कर्नल मुख्तार भट्ट साहब दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।